we will continue with explanation of chapter number 8 body movements, session number 6. In last sessions, children, we have discussed about movements in organisms, right? How they move with their body parts. In that, we have discussed about snake, then we have discussed about fish. Today, children, we are going to see some more animals in which type they are having different movements. First is snail, earthworm, birds and insects. Now these animals are having different movements in their body. They use different parts of the body for movement. All the animals, children, they don't move in a same way. They move in different way according to their body structure. So first we will discuss is about snail. Snail have a soft body which they can pull back into their shell. Children, you must have seen snail. Snail is having a shell-like structure. In that it is having a very soft body. Jelly-like body it is having. And it can pull the body back into the shell when there is any enemy attacking to them. Right children? तो वो अपना प्रोटेक्शन खुद ही कर लेते हैं. उनके बॉडी के ऊपर सेल होता है. वो सेल हार्ड होता है. जब उन्हें ऐसा लगा कि हमारी बॉडी डेंजर में है तो वो अपने आप को शेल के अंदर की तरफ पुल करते हैं. They have a large flat foot which help them to move forward. अब स्नेल आपने देखा होगा, स्नेल के ऊपर ऐसे शेल होता है और यहाँ पे स्नेल की बॉडी होती है, right? Now this structure, they are having a flat foot. This allows the snail to move forward. The foot secretes a slimy substance which help the snail glide over the ground. अब जो snail होती है उसके नीचे की तरफ slimy substance होती है. Slimy substance क्या होता है? एक sticky substance उनके बाहर निकलता है और वो sticky substance जो है वो उनको मूव करने में हेल्प करता है, right? Dragging its heavy shell with it. अब जब स्नेल मूव करती है तो उसके साथ उसका जो शेल होता है वो भी मूव होता है. The movement of the foot is controlled by muscles attached to it. अब स्नेल जो मूव कर रही है उसकी जो मसल्स होती है वो शेल के साथ अटैच होती है और वो जो मसल्स होती है वो स्नेल को स्लोली आगे मूव करने में हेल्प करते हैं, राइट? सो दिस वाज अबाउट स्नेल. नाउ नेक्स्ट एनिमल इज earthworm. Earthworm, children, you must have seen many times in rainy season. ज्यादातर earthworms हमें रेनी सीजन में मिलते हैं क्योंकि earthworm जो है वो ज्यादातर सॉइल में रहते हैं और जब बारिश होती है तो उनके जो होल्स होते हैं वो पानी से भर जाते हैं. That is why the earthworm starts coming on the soil, on the top layer of the soil. The body of an earthworm is made up of many ring-like structure joined end to end. अब ये जो earthworm है उसकी बॉडी ऐसे सेगमेंट्स के से ज्वाइंट होती है, राइट? इट इज मेड अप ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. earthworm है उसकी बॉडी ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है और ये जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो रिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है. एंड earthworm does not have bones. अब ये जो earthworm है उसे बोन नहीं होता है, राइट? जैसे कि हमने स्नेक में देखा था, स्नेक के अंदर वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट थे लेकिन earthworm के अंदर वर्टिब्रेट्स होते नहीं है. So they don't have a single bone into their body. During movement,
The earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. अब जब earthworm मूव होता है तो ये जो rear part होता है उसे फिक्स करता है, और जो आगे का पार्ट है, राइट, the first part starts extending. जो फ्रंट पार्ट होता है, the front part starts extending, starts moving. ओके, वापस जब ये रेयर पार्ट इधर आता है तो वहां पे उसे फिक्स करते हैं और आगे की तरफ और बढ़ते हैं, राइट. सो द earthworm moves in this manner, keeping the rear part of the end fixed and moving the front part easily. So this was about earthworm. Earthworm is an invertebrate. उसके अंदर bones नहीं होते हैं. Next, a bird. A smooth streamlined body offer little resistance to flow of air. अब जो बर्ड होते हैं उसकी बॉडी कैसे होती है? आपने बर्ड तो देखे ही होंगे चिल्ड्रन. अब ये जो बर्ड्स होते हैं उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है. स्ट्रीमलाइन यानी फ्रंट पार्ट और एंडिंग पार्ट टेपरिंग होता है, पॉइंटेड होता है, राइट, सो दैट दे कैन ब्रेक द एयर एंड दे कैन मूव. एयर को ऐसे धक्का देके वो उड़ सकते हैं. अ स्केलेटन मेड ऑफ हॉलो बोन्स मेक अ बर्ड लाइट सो इट कैन होल्ड इट्स बॉडी अप इन द एयर. अब ये जो बोन्स होते हैं बर्ड्स के, उनके बोन्स ऐसे हॉलो होते हैं. दे आर हैविंग हॉलो बोन्स, यानी बोन्स के बीच की जो स्पेस होती है वो एम्प्टी होती है. दैट इज व्हाई द बर्ड्स आर लाइटर एंड दे कैन फ्लाई इजीली. A skeleton made of hollow bones make a bird light so it can fly in the sky easily. Big, strong flight muscles attached to the wings help them to fly. अब यहाँ पे उन्हें wings होती है, और ये जो wings होते हैं वो उसके जो muscles होते हैं वो बहुत ही firm यानी strong होते हैं. That is why the birds can open the wings and it can fly very nicely. The wings of the bird, when spread out, have a large surface area as compared to that of the body. जब birds अपने wings open करते हैं तो उनकी center जो part होता है body का, उससे wings ज़्यादा बड़े होते हैं. That is why it can cover the whole area of the body. Next, this is essential to help a bird fly against the force of gravity. अब यही रीजन है कि जो विंग्स होते हैं वो एयर को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाके बर्ड्स को आगे लेके जाने में मदद करते हैं. आपने एरोप्लेन्स भी देखे होंगे. Now aeroplanes are also made in this manner only, that the two ends are tapering. So aeroplanes are also having streamlined body. They are having wings. Because of wings, they can push the air and they can move forward. So they can fly against the force of gravity. क्योंकि force of gravity हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद है, right? So you know children, what is gravity? It allows all the things to come down to the earth. It allows all the body to come down to the earth. लेकिन बर्ड एरोप्लेन जब फ्लाई करते हैं तो वो नीचे की तरफ नहीं गिर जाते. They can fly easily into the sky. About 98% of all animals are invertebrate. 98% एनिमल्स जो है वो इनवर्टिब्रेट हैं. इनवर्टिब्रेट यानी उनके अंदर बोन्स नहीं है, स्केलेटल सिस्टम नहीं है. दैट इज दे डू नॉट हैव अ वर्टिकल कॉलम और एन इंटरनल स्केलेटल सिस्टम मेड अप ऑफ बोन. 98% ऐसे एनिमल हैं
जिनकी बॉडी के अंदर इन वर्टिब्रल सिस्टम नहीं है, दैट इज दे डोंट हैव skeletal system made up of bone. Next is insect. Insect have a hard covering over their body or an exoskeleton. जो insects होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बाहर की तरफ स्टिफ यानी हार्ड होती है. ओवर द बॉडी एंड एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन यानी उनकी जो ऊपर का जो लेयर होता है बॉडी का उसके अंदर स्केलेटल सिस्टम उनकी होती है. दैट मेक्स देम हार्ड. व्हेन एन इंसेक्ट वॉक्स 3 legs, two on one side and one on the other, supports the body while the other 3 moves the body forward. अब आप कोई भी इंसेक्ट ले लीजिए तो उनके लेग्स जो होते हैं ऐसे होते हैं. तो ये जो पेयर ऑफ लेग्स होती हैं दोनों तरफ, तो एक तरफ के जो 3 लेग्स हैं वो पुश करने में आगे की तरफ पुश होते हैं, बाद में वो फिक्स होके दूसरे 3 आगे की तरफ पुश होते हैं. सो लाइक दैट चिल्ड्रन दे कैन मूव इजीली, राइट. So the 2 wings are tough, flexible and light. अब इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स होती हैं छोटी छोटी, राइट. वो विंग्स जो होती हैं वो टफ होती हैं, फ्लेक्सिबल भी होती हैं और वेट में लाइट भी होती है. जैसे कि हम एक पॉलीथीन ले लें, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी विंग्स ट्रांसपेरेंट भी होती हैं, राइट, बट इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, राइट. Strong muscles helps the wings beat again. अब जो wings होती हैं वो मसल के साथ कनेक्टेड होती है और जैसे ही वो फ्लाई करते हैं वो मसल्स उन्हें मूव करने में मदद करती हैं एंड इट बीट्स अगेन एंड अगेन. आपने देखा होगा कि मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, जब वो फ्लाई करते हैं तो उनकी विंग्स एक दूसरे के साथ रब होती है. आपने फायर फ्लाई भी देखा होगा, जुगनू, जिसकी वजह से जब रात को जुगनू देखते हो तो उसकी विंग्स एक दूसरे के साथ रब होके उसके अंदर से फायर भी बाहर निकालती है. तब रात को हमें जुगनू चमकते हुए दिखाई देते हैं, राइट. सो द विंग्स ऑफ द इंसेक्ट दे आर यूजिंग इन फ्लाइंग, दे बीट अगेन एंड अगेन विद ईच अदर, राइट चिल्ड्रन. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट movement in snail, earthworm, insect and bird. All these animals are having different movements. So with this we complete our chapter. In next session children, we will discuss the solution part of this chapter. Thank you and have a nice day children.